welcome everybody to this new lecture of our book Electrodynamics. Today we will discuss yet another new topic, and this is all over of unit number 3rd, the electromagnetic radiation. Our today's topic is about two radiation. The first one is the Bremsstrahlor radiation. It is pronunciation as Bremsstrahlor, and second is the Krennikov radiation. The two types of radiation. In today's lecture we will discuss about these type of radiations. Okay, and before this we going to the topic as we were discussing in our last lecture, that is the Lenard generalization of Larmor formula. You can say it as relativistic generalization of Lenard formula. There is a little bit tough mathematical calculation here. This is the power radiated by the point charge in the relativistic limits. That is when the velocity of the charged particle approaches to the velocity of light. So this is the power radiated by the point charge into the relativistic limits. Okay, and the result shows that P is directly proportional to gamma, and gamma has power 6 here. So definitely the power is increased enormously here, and we get a very big amount of radiation, or very large amount of radiation, as the velocity of the charged particle approaches to the relativistic limits. Okay, now in today's lecture let us first discuss about Bremsstrahlor radiation. What is Bremsstrahlor? This word Bremsstrahlor. Okay, Bremsstrahlor रेडिएशन का मतलब होता है ब्रेकिंग रेडिएशन। ब्रेकिंग रेडिएशन क्या है, इसका मतलब समझ लेते हैं। देखिए, ये जो ब्रेमस्ट्राह्लो है ये एक जर्मन वर्ड है। ओके, और जर्मन वर्ड किस तरह से है? जर्मन में ब्रेमेसन का मतलब होता है, जो पहला हिस्सा है ब्रेमस्ट्राह्लो का, ब्रेमेसन। तो ब्रेमेसन का मतलब होता है टू ब्रेक, जर्मन में, इन जर्मन। एंड स्ट्राह्लो का मतलब होता है रेडिएशन, यानी ब्रेमस्ट्राह्लो का मतलब हुआ ब्रेकिंग रेडिएशन। यानी ये जो रेडिएशन है ये एक ब्रेकिंग रेडिएशन है। ओके, तो ब्रेकिंग रेडिएशन क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। ओके, इतनी इस बात से हमें समझ में आ गया कि ये कंटिन्यूअस रेडिएशन नहीं है, ब्रेकिंग रेडिएशन है। ओके, ब्रेकिंग रेडिएशन क्या होता है, देखिए कैसे प्रोड्यूस होता है उस बारे में हम बात करेंगे। बहुत छोटे से इन टॉपिक्स है, और इसके साथ ही हमारी जो यूनिट नंबर 3rd है वो समाप्त हो जाती है, और अपना 75% ऑफ सिलेबस हम यहाँ कंप्लीट कर देंगे। ओके, so it is a radiation produced by de-accelerated charged particles. de-accelerated यानी पहले वो पार्टिकल एक्सेलरेटेड था, लेकिन बाद में क्या हुआ? de-acceleration। de-acceleration, acceleration, de-acceleration, यानी पहले कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड था, लेकिन कोई वहां ऐसे फिनोमिना हुई है जिसके कारण उसका de-acceleration हुआ है। So it is a radiation produced by a de-accelerated charged particle when deflected by another charged particle. Okay, when moving charged particle interact with another charged particle, it loses its kinetic energy. ये obvious बात है कि जैसे ही कोई accelerated charged particle किसी दूसरे charged particle से interact करेगा, ये बहुत obvious बात है कि उसकी kinetic energy में loss आएगा, और यही kinetic energy जो loss आता है उसकी kinetic energy में, यही kinetic energy convert होती है into radiation, which satisfying by or to satisfying द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी में कमी आएगी, वही कमी और वही फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट होकर वही जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो हमें इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन मिलता है। ओके, प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रेज बाय डी-एक्सेलरेटिंग हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्रेमस्ट्राह्लो रेडिएशन। तो जो एक्सरे का प्रोडक्शन है, एक्सरेज का प्रोडक्शन आपने कहीं ना कहीं मॉडर्न फिजिक्स में कहीं ना कहीं स्टडी जरूर किया होगा, या तो फिर आने वाले जो सेमेस्टर हैं आपका उसमें आप स्पेक्ट्रा को स्टडी करेंगे तो वहाँ आपको एक्सरेज का जो
प्रोडक्शन है बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा। तो एक्सरेज का प्रोडक्शन क्या होता है कि देखिए ये फिगर हमें इस टॉपिक या फिर इस फिनोमिना के बारे में बताएगी। ये हमारे पास यहाँ कोई भी एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ न्यूक्लियस को ये डार्क सर्कल से न्यूक्लियस को दिखाया गया है और जो थोड़ा सा ब्राइट सर्कल है उससे हम इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन ये बहुत ऑब्वियस सी बात आपको पता है कि पहली जो सेल होगी वहाँ, जिसको हम KLMN इस तरह से बोलते हैं, तो पहली जो सेल होगी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद वाली में 8 होंगे, फिर 8 और इस तरह से आगे वो 2n² वाले फॉर्मूले से आप उसकी संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद होता क्या है कि जब कोई एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स या हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन यहाँ इस एटम से टकराता है तो वो इस सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके साथ इंटरैक्ट करता है। और ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इसी सेल के इलेक्ट्रॉन से टकराए, वो कहीं भी टकरा सकता है। क्योंकि आपको पता है कि रदरफोर्ड ने जो डिस्कवरी की थी, या फिर हम कह सकते हैं एटम के बारे में जो बताया था, या रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में उन्होंने कहा था कि एटम के अंदर का बहुत सारा पार्ट खाली है और केवल एक ही जगह एटम का पूरा मास और अप्रोक्सीमेटली the total mass and the total positive charge is concentrated into one point which is known as the nucleus of that atom. So इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से इंटरैक्ट करता है इस एटम के साथ, तो ये हो सकता है कि वो K सेल के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट करे, या L सेल के इलेक्ट्रॉन के साथ, M सेल के इलेक्ट्रॉन के साथ, N सेल के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट करे। तो यहाँ से होता क्या है, यहाँ से जो हम पर्टिकुलरली इस फिगर की हम बात करें तो इस फिगर में एक इलेक्ट्रॉन आता है और वो सबसे अंदर वाला यानी न्यूक्लियस के बाद वाला जो सेल है उसके इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्ट करता है। ये चूंकि हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन से इसके पास बहुत सारा एक्सेलरेशन है, बहुत सारे हाई स्पीड हाई वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। तो जब ये इसके साथ इंटरैक्ट करेगा इस इलेक्ट्रॉन के साथ, तो अपने आप ये डीएक्सिलरेट हो जाता है, और इसके डीएक्सिलरेशन से इसकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है और वही काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन हमें मिलती है और डीएक्सिलरेशन के साथ ये दूसरी डायरेक्शन में मूव कर जाता है। और यहाँ से जो डीएक्सिलरेशन से इसकी एनर्जी का लॉस हुआ है, यही एनर्जी हमें इस रेडिएशन की फॉर्म में मिलती है, जिसको हम ब्रेमस्टर-लॉ रेडिएशन कहते हैं। तो इस तरह से जो डीएक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, यानी एक्सिलरेटेड तो वो था, लेकिन डीएक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल से मतलब ये है कि एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल से टकराता है और अपनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस करता है, और इसकी ये जो इसकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ है, यही एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन हमें मिलती है बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड दिस रेडिएशन इज नोन एज द ब्रिमस्टर-लॉ रेडिएशन। ओके, दिस रेडिएशन इज नोन एज ब्रिमस्टर-लॉ रेडिएशन। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जो हमारे सिलेबस में था, ब्रिमस्टर-लॉ रेडिएशन, जिसको हम ब्रेकिंग रेडिएशन भी कहते हैं। एक जर्मन वर्ड है ब्रिमस्टर-लॉ, वहीं से ये टॉपिक आया है। द अदर वन इज द Kirnikov रेडिएशन। The second topic included in our syllabus is the Kirnikov radiation. Okay, what is Kirnikov radiation? Okay, so Kirnikov radiation is produced when a charged particle, यहाँ भी एक charged particle है, such as electron passes through a dielectric medium. यहाँ जब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम से पास होता है, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में आपको ये पता होगा कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम, पहले डाइलेक्ट्रिक का आपको पता होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक क्या है? देखिए, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है यहाँ डाइलेक्ट्रिक के बीच में और इंसुलेटर के बीच में। इंसुलेटर के बीच में और डाइलेक्ट्रिक के बीच में ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि डाइलेक्ट्रिक ही इंसुलेटर है, इंसुलेटर ही डाइलेक्ट्रिक है। आप ऐसा ब्रॉडली कह सकते हैं, लेकिन एक बहुत
बड़ा एक डिफरेंस वहाँ होता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम में और इंसुलेटर में। उसके ऊपर आज हम चर्चा नहीं करेंगे। तो किरणिकोव रेडिएशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम से पास होता है और बहुत स्पीड पे, यानी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो वो उस मीडियम को पोलराइज्ड कर देता है, उस मीडियम को पोलराइज्ड कर देता है। और पोलराइजेशन के कारण वहाँ एमिशन होता है रेडिएशन का, और रेडिएशन जो होता है वहाँ फिर उस रेडिएशन का इंटरफेरेंस होता है, और इंटरफेरेंस से जो स्फेरिकल वेव जनरेट करता है, ये जो आपको फिगर में नजर आ रही होगी, इस तरह की स्फेरिकल वेव फ्रंट्स कहिए आप इन्हें, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स किसको जनरेट करते हैं? किरणिकोव रेडिएशन को। तो कुल मिला के यहाँ फिनोमिना ये है कि एक चार्ज पार्टिकल है। इससे पहले ब्रिमस्टोन रेडिएशन जब हम स्टडी कर रहे थे, उस रेडिएशन में क्या हो रहा था कि एक चार्ज पार्टिकल आता है, वो किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल से इंटरेक्ट करता है और वो अपनी काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा लॉस करता है, और यही जो लॉस है काइनेटिक एनर्जी में, यही हमें रेडिएशन के रूप में मिलता है, जिसको हम ब्रिमस्टोन रेडिएशन कहते हैं। यहाँ कहानी इतनी सी अलग है कि वही चार्ज पार्टिकल है हमारे पास, लेकिन इस बार वो किसी चार्ज पार्टिकल, दूसरे चार्ज पार्टिकल से इंटरेक्ट ना करके एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इंटरेक्ट कर रहा है, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में मूव कर रहा है, और वेलोसिटी काफी हाई है। मींस आप ये कहें रिलेटिविस्टिक लिमिट्स में उसकी वेलोसिटी है, यानी कि द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अप्रोचेस टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। इतनी तेज स्पीड का वो वेलोसिटी का इलेक्ट्रॉन है। ये इस तरह का जो रेडिएशन है उसको हम किरणिकोव रेडिएशन कहते हैं। देख लेते हैं इसको एक बार। किरणिकोव रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ए चार्ज पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन passes through a dielectric medium at a speed greater than speed of light in that medium. greater than इस बात को याद रखिए। Kirnikov radiation is produced when a charged particle such as electron passes through a dielectric medium at a speed greater than speed of light in that medium. If charged particle like electron travel in a dielectric medium at very high velocity along its trajectory, it interacts with large number of molecules in dielectric medium. जो dielectric medium के molecules है, वो इलेक्ट्रॉन जब उस मीडियम से पास होगा तो उस मीडियम के molecules के साथ इंटरेक्ट करेगा। All of the molecules will get polarized and subsequent depolarization which leads to the emission of radiation in the form of spherical waveform. इस तरह से ये डायरेक्शन है उस चार्ज पार्टिकल की, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ, ये डायरेक्शन है जिस तरफ इस पेन का निब है उस तरफ इस पार्टिकल के जो चार्ज पार्टिकल है, हाई एनर्जेटिक या हाई वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल है, फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल है, इस तरफ वो मूव कर रहा है। और ये जो स्फेरिकल वेव फॉर्म्स, ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आपको दिख रहे हैं, वेव फॉर्म्स आपको दिख रहे हैं, इस तरह का एक की पैटर्न, एक इस तरह का पैटर्न हमें देखने को मिलता है, और ये जो पैटर्न है ये जनरेट करता है द किरणिकोव रेडिएशन। इस तरह के रेडिएशन को जनरेट करता है जिसको हम किरणिकोव रेडिएशन कहते हैं। ये पूरा का पूरा एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसमें ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ओके, दीज वेव फ्रंट्स, यानी ये जो वेव फ्रंट्स है स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, ओके, हाइगेन्स प्रिंसिपल अगर आपको याद हो ऑप्टिक्स में, तो वहां से इस कहानी का जन्म होता है वेव फ्रंट्स का। ये वेव फ्रंट्स केवल स्फेरिकल ही नहीं होते, वो सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, मे बी कॉनिक हो सकते हैं, 2-3 तरह के वेव फ्रंट्स पॉसिबल हैं। जिस तरह का सोर्स है, यानी सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लाइट किस तरह का है, मतलब मैं ऑप्टिक्स की अगर थोड़ी सी बात करूं, क्योंकि ये जो वर्ड है वेव फ्रंट्स ये वहीं से आता है, ऑप्टिक्स से ये वर्ड आता है। तो ऑप्टिक्स में अगर मैं वेव फ्रंट्स की बात करूं तो हाइगेन्स का प्रिंसिपल, हम वहाँ हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेव्स का प्रिंसिपल हम वहाँ पढ़ते हैं, और वहाँ ये वर्ड हमें सुनने को देखने को मिलता है, समझने को मिलता है, वेव फ्रंट्स। ओके,
तो जिस तरह का लाइट सोर्स है, जिस तरह के मान लीजिए सपोज कीजिए टावर्स, अगर आप देखते होंगे मोबाइल टावर्स, तो उस पर कुछ सिलिंड्रिकल शेप के इक्विपमेंट लगे रहते हैं, ओके, रेक्टेंगुलर शेप के आपने देखे होंगे, और कुछ आपको स्फेरिकल शेप के भी मिलते हैं। तो जो 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 वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो भी वहाँ से निकल रही होंगी, तो वो उसी फॉर्म में निकलती है जिस फॉर्म का वहाँ इक्विपमेंट लगा है। यानी अगर वो सिलेंड्रिकल फॉर्म का है तो वहाँ से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स जनरेट होंगे, अगर वो स्फेरिकल शेप का है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स जनरेट होंगे। तो ठीक इसी प्रकार ऑप्टिक्स में भी होता है। ऑप्टिक्स में जिस तरह का सोर्स होगा, यानी सोर्स ऑफ लाइट जिस तरह की होगी, रेक्टेंगुलर होगा अगर सोर्स ऑफ लाइट तो रेक्टेंगुलर वेव फ्रंट्स जनरेट होंगे, स्फेरिकल होगा अगर लाइट का सोर्स तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स जनरेट होंगे। तो ये वर्ड वहाँ से आता है, ऑप्टिक्स से ये वर्ड आता है वेव फ्रंट्स, ओके। और हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेव्स हम वहाँ पढ़ते हैं। तो दीज वेव फ्रंट्स, इस तरह की जो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हैं, दीज वेव फ्रंट्स अंडरगोज ए सर्टेन काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये वर्ड भी हम वहीं पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस, वैयतिकरण, along a particular direction which leads to intense coherent beam of radiation known as Kirnikov radiation। तो ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हैं, ये एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण हमें एक कोहेरेंट बीम ऑफ रेडिएशन मिलता है, जो इन एरोज के थ्रू हमने यहाँ दिखाया है, और इसी रेडिएशन को हम कहते हैं किर्निकोव रेडिएशन। तो ब्रॉडली अगर हम कहें कि ब्रिमस्टोर लॉ रेडिएशन और किर्निकोव रेडिएशन में क्या डिफरेंस है, तो जो ब्रॉडली स्पीकिंग हम कह सकते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल, कोई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, हाई वेलोसिटी हाई एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के साथ इंटरैक्ट करता है और वहां से जो रेडिएशन जनरेट होता है उसको हम ब्रिमस्टोर रेडिएशन कहते हैं। और जब कोई हाई एनर्जेटिक पार्टिकल की डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, जो मीडियम के मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ इंटरैक्ट करता है, उनको पोलराइज कर देता है, वहां से फिर स्फेरिकल वेव फ्रंट्स जनरेट होते हैं जो आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं और एक कोहेरेंट बीम ऑफ रेडिएशन का प्रोडक्शन करते हैं। इस प्रकार के रेडिएशन को हम किर्निकोव रेडिएशन कहते हैं। यानी मेन डिफरेंस ये है कि दोनों केस में हमारे पास हाई एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल हैं, लेकिन जो ब्रिमस्टोर लो रेडिएशन है वो केवल तब होगा जब वो हाई एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के साथ इंटरैक्ट करेगा, और किर्निकोव रेडिएशन तब प्रोड्यूस होगा जब वो हाई एनर्जेटिक या हाई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट करेगा। ये मेन डिफरेंस आप याद रखिए ब्रिमस्टोर लो रेडिएशन में और किर्निकोव रेडिएशन में, ओके। सो दीज वेव फॉर्म्स, वेव फ्रंट्स, इस तरह के जो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स है, मैंने बताया जिस तरह का सोर्स होगा उसी तरह के वेव फ्रंट्स भी होंगे। These wave fronts undergo certain kinds of constructive interference along a particular direction which leads to intense coherent beam of radiation known as Kirnikov radiation। तो इस तरह का जो रेडिएशन यहाँ से जनरेट होगा उसको हम किर्निकोव रेडिएशन कहें। दिस रेडिएशन इज अ वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच लाइज इन अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन। वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और नीचे वाला जो रीजन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, अल्ट्रावायलेट या फिर विजिबल रीजन, वहां ये लाई करता है। दिस रेडिएशन इज एमिटेड मेनली इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड इज कन्फाइंड टू ए वेरी स्मॉल कॉन ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल थीटा। तो ये जो कॉनिक सेक्शन आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये तो ये चार्ज पार्टिकल इस तरह से मूव करता है और अपने पीछे इस तरह से, इस तरह इस तरह इस तरह से, मान लीजिए यहाँ से जनरेट हुआ तो इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, तो कॉनिक फॉर्म में रेडिएशन को एमिट करता है। तो दिस एक वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा आज, तो वहां से आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि किर्निकोव रेडिएशन का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, ओके। सो this radiation is emitted mainly in the direction of motion of charged particle and is confined to a very small cone of semi-vertical angle theta. This angle is theta. Let the distance traveled by the charged particle is Vt. तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल की है चार्ज पार्टिकल ने इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इसको हमने कहा है Vt. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव फ्रंट्स, और इन वेव फ्रंट्स ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है दैट इज c/n into t. Vt is a distance, velocity into time, and this is also
distance. Velocity of the charged particle wavefronts in dielectric medium, in a medium C by n. ये result हम पढ़ के आए हैं, study करके आए हैं पीछे. C by n into T, where n is the refractive index of the medium, C is the velocity of the light, and T is the time taken by the charged particle to move this distance. Okay. We can write here that C by n is less than V, which is less than C, then cos theta. इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें केवल अब यहाँ ये वाला ट्रायंगल, तो ये वाला जो आर्म है इसके VT है और ये वाली आर्म C by n इंटू कॉस थीटा. जब इस ट्रायंगल में हम लगाएंगे तो कॉस थीटा होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज एंड दैट इज C by n into 1 by VT. This base over hypotenuse, T is cancelled with T, and where theta is cos inverse C by NV. This is the angle at which these intense beam of radiation, that is known as Kirnikov radiation, is emitted with respect to the velocity of charged particle. So this is the angle. Sometimes it can be asked in examination about this angle, so remember this formula. Okay, so these two types of radiation, and with these types of radiation we end up unit number 3rd, the electromagnetic radiation. The last topic are Bremsstrahlor radiation and the Kirnikov radiation. So thank you for now, and meet you into the next one. Thank you.